So, bache, good afternoon in today's class, and today we are going to discuss one of an important topic. As you already know, we have been done with our first two tenses. We have talked about present tense, and we have also talked about the past tense. So, today we are about to cover the future tense. So, we will be covering future tense today, but I really want to know from you all that, bache, if we talk about future tense, so what do you mean by future? What do you mean by future, बच्चे? Uh, this जो this tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. Okay. In simple terms, if I say in very simple language, if I say like this, कि if something will be happening in the future or action that would be taking place in the future, those situation would be considered as future tense. Is it right or wrong? Okay. So if we talk about future, it totally means uncertainty, because future is uncertain in nature. What do you mean by the word uncertain or uncertainty? विजिबल नहीं हो रही है विजिबल What do you mean by uncertain, बच्चे? सर अनप्रिडिक्टेबल Unpredictable, obviously. So now you might be thinking कि सर अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर इफ़ आई एम टेलिंग कि आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रही होंगी, तो मैं तो जा रही होंगी, इसमें अनसर्टेनिटी कैसे हुई? लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल बेटा. सो आई होप you do remember 23rd December. 23rd December last year what happened? विजिबल नहीं हो रही Okay, if we talk about 23rd September, बच्चे. Excuse me, sir. Yes, बच्चे. Screen is not visible. Now is it visible, बच्चे? Yes, sir. So बच्चे, if I talk about 23rd December, so 23rd December को क्या हुआ था? That was the day when your vacations got started, है ना? Winter breaks was started, and school was about to reopen on 7th of January, but it didn't happen. Actually, school got reopened in the month of Feb. Do you agree? So it was planned that school was about to reopen on 7th of January, but it got shifted due to the climatical conditions, right? So can you smell that future tense is uncertain? Yes, definitely it is uncertain, बच्चे, because no one can predict future. For example, if I am going to Delhi tomorrow and I am saying that I will be reaching Delhi tomorrow, but somehow during my travel I get I face some problem. Maybe I got my tar puncture if I'm traveling by road, so I won't be able to reach on time. Maybe on the next day I will be reaching Delhi. सो फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल. आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर टेंस इज फर्दर डिवाइडेड और फर्दर सब कैटेगराइज इनटू 4 सब टाइप्स. द वेरी फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर. द सेकेंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव. The third one is future perfect, and the last one is future perfect continuous. Right? यही होता है या इसके अलावा भी कुछ होता है बच्चे? यही होता है, right? Okay. So we will be discussing the very first tense, that is simple future. अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इन वेरी इजी वर्ड आई विल मेक दिस टाइप ऑफ टेंस अंडरस्टूडेबल टू यू. ओके बच्चे, व्हेन वी आर गिविंग आवर सेल्फ एश्योरेंस, व्हाट वी आर डूइंग इट, हम अपने आप को एश्योर कर रहे हैं और अपने आप को एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कल ऐसा करेंगे, बट अल्टीमेटली वी आर नॉट श्योर. Future is not predictable because of so many factors. For example, I give you an example. अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, I shall go go to
स्कूल टुमारो, tomorrow, राइट। तो इसका रूल क्या हुआ? इसका रूल हुआ बच्चे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो यूज होते हैं, एक होता है शैल, एक होता है विल। will, शैल के साथ होता है आई और वी, और विल के साथ होते हैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, नेम, यू, दे। ठीक है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैंने अपने आप को श्योरिटी दी है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा। बट अगर कल जम्मू बंद हो जाए, अगर कल स्ट्राइक हो जाए, अगर चक्का जाम हो जाए, या अगर मैं बीमार हो जाऊं, क्या मैं स्कूल जा पाऊंगा? no sir, नहीं जा पाऊंगा। दैट मीन्स कि सिचुएशन इज अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, बट हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस ये कहता है कि हमने अपने आप को श्योरिटी दी है, हमने अपने आप को एश्योरेंस दी है कि कल मैं ऐसा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, नेहा will eat mangoes with Ria tomorrow at my place। यानी नेहा जो है कल आम खाएगी रिया के साथ मेरे घर पर। अब कल सिचुएशन क्या होगी, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, बट ये श्योरिटी है, ये अश्योरेंस है कि नेहा कल आम खाएगी। तो जिसमें हम अपने आप को एश्योरेंस देते हैं, जिन सेंटेंसेस में श्योरिटी होती है, एक कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट इज़ द राइट वर्ड, उन सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर के सब के अंतर्गत रखा जाता है, यानी उसको फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में कैटेगराइज किया जाता है। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस सॉर्ट ऑफ टेंस बच्चे, सिंपल फ्यूचर? ओके, सो वी आर गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब बच्चा अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? ongoing, ऑन गोइंग, यानी ऑन गोइंग इन और इन कंटिन्यूटी, इन कंटिन्यूटी, जो कि कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है। कब कंटिन्यूटी में चल रहा है? ऑन गोइंग कब है? इट इज इन फ्यूचर। जैसे कल मैं मुंबई ट्रैवल कर रही होंगी, रही होंगी, और एक चीज याद रखना, रही होंगी, रहे होंगे, होंगे, या रहा का, होगा। वेरी गुड। तो इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव में कंसीडर करेंगे। अब जब कंटिन्यूस की बात आती है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है बच्चे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज होता है। तो इसका जो रूल है वो बहुत सिंपल है। इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है will be, shall be, शैल बी। शैल यूज होता है आई और वी के साथ, और विल बी यूज होता है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इसके साथ विल बी आएगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं फ्यूचर में दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँगा, ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई शैल बी ट्रैवलिंग to Delhi दिल्ली on टुमारो tomorrow, और डे आफ्टर टुमारो, जैसा भी होगा। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इसे हम किस में लेते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इज दिस क्लियर बच्चे? yes sir, Is there any doubt? Okay. Now we are moving up with next tense, that is future perfect.
अब परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट जब हम लगाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं बच्चे? थर्ड। वर्ब के थर्ड फॉर्म को और क्या कहा जाता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म को, वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में पास्ट की बात हो रही है ना? आंसर इज देयर इन द क्वेश्चन ओनली, राइट? अब क्या आप सोच सकते हो कि फ्यूचर में पास्ट की बात कैसे हो सकती है? कैन यू थिंक फ्यूचर में पास्ट की बात? नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर, फ्यूचर में पास्ट की बात कैसे होगी? ओके बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम है सिया और दूसरे बच्चे का नाम है रिया, राइट? सिया रिया दोनों कैफेटेरिया जा रहे हैं, मगर उनकी तीसरी फ्रेंड है प्रिया। सिया रिया प्रिया से पूछते हैं कि विल यू कम अलोंग, क्या आप साथ में कैफेटेरिया चलोगे? तो प्रिया कहती नहीं मैं काम कर रही हूँ, आप चलो तो मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। अब सिया और रिया कैफेटेरिया में पहुँच जाते हैं और वो खाते खाते सोचते हैं क्या अब तक रिया ने अपना काम कर लिया होगा, यानी काम कंप्लीट हो रहा है फ्यूचर में। क्या सिया और रिया कहती हैं प्रिया ने अपना काम कर लिया होगा, इमेजिन कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में कैटेगराइज करते हैं। इज इट राइट? समझ में आया सबको? सर दोबारा समझा देना एक बार। ओके बच्चे, इसमें क्या होता है, परफेक्ट यानी कि कोई काम जो है वो पास्ट में है, मगर पास्ट में कैसे होगा, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि कोई काम, हम इमेजिन करते हैं कि कोई काम अब तक ख़त्म हो गया होगा। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे चुके होंगे, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में उन्होंने भाषण दे दिया होगा, दे चुके होंगे। या राम सो चुका होगा, हम कहते हैं यार राम को बुलाते हैं खेलने के लिए, मगर क्या पता राम सो चुका होगा, यार हमारा टाइम वेस्ट होगा बुलाने में, तो सो चुका होगा। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुकी होगी। गॉट इट? यस सर। ओके, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट के रूल की बात करें बेटा, तो रूल इसका कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव, वेरी गुड, विल हैव और शैल। शैल नहीं है, शैल कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? शैल हैव, राइट? शैल हमेशा आई और वी के साथ आएगा और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आपका विल हैव आएगा। गॉट इट? ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। हम इसको कन्वर्ट करके एक दो एग्जाम्पल हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं छत पर पतंग उड़ा चुका हूँगा, कैसे लिखेंगे? मैं ओके आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। मैं छत पे पतंग उड़ा चुका हूँगा। बेटा क्या बोला आपने? I shall have flown the kite in the terrace at the time on my roof। ठीक है बच्चे? ओके Yes. हम एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं, ठीक है? हम फिल्म देख चुके होंगे। हम we shall have watched the film। Got it? समझ में आ गया सबको? बच्चे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर परफेक्ट में आपको? No, sir. समझ में आ गया? No, sir. Okay, no problem is there. Okay, good.
So we will now discuss the last category, that is future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी में है, ऑन गोइंग है, राइट. परफेक्ट पास की बात हो रही है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. और फ्यूचर में अब आप ये सोचेंगे सर कैसे. बच्चे जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा यू हैव टू कीप ए बेसिक रूल इन योर माइंड के फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस जो है वो परफेक्ट को डोमिनेट करेगा. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब हम एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं. हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर कंटिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की. फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो इसका रूल क्या होता है. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है. ओके, वेरी गुड. अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तो इसका रूल भी यही कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मगर इन दोनों में फर्क क्या है. हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है. हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है. बच्चे यहाँ पे कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यूटी में है, ऑन गोइंग है, और हमें कुछ नहीं पता कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था. यहाँ इसमें टाइम रेफरेंस नहीं है. इट हैज नो टाइम रेफरेंस. बट जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं इसमें भी एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है फ्यूचर में, बट इसमें टाइम रेफरेंस होता है विद टाइम रेफरेंस. समझ में आया बच्चे. फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, मगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम रेफरेंस इज देयर. गॉट इट. Okay, now we will discuss the rule of future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब होता है Will have been. वेरी गुड. Shall विल have been. हैव बीन, Shall have been. shall have been. Been. अब shall have been के साथ क्या आएगा I और we. will have been के साथ क्या आएगा rest of the subjects. Now let me give an example of you of the same. अगर मैं कहता हूँ the father will have been reading the newspaper for 10 minutes. पापा 10 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे. पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे. तो फ्यूचर कंटिन्यूस कौन सा हुआ इन दोनों में से बच्चे. फ्यूचर कंटिन्यूस, हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे. मगर जब इसमें टाइम रेफरेंस लगा कि पापा 10 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, टाइम आ गया, तो ये क्या बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो द फादर विल हैव बीन रीडिंग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes. गॉट इट बच्चे. समझ में आ गया. ओके. अब जब टाइम रेफरेंस आ जाता है, अगर मैं कहता हूं राधा
10 बजे से इंतज़ार कर रही होगी। राधा 10 बजे से इंतज़ार कर रही होगी। राधा will have been will have been waiting waiting since 10 o'clock। 10 अब यहाँ पे सिंस क्यों आया बच्चे? सिंस इसलिए आया क्योंकि टाइम स्पेसिफिक है। यहाँ पे फॉर इसलिए आया क्योंकि टाइम स्पेसिफिक नहीं है। वी डोंट नो कि कौन से 10 मिनट की बात हो रही है, मगर हमें यहाँ पे पता है कि ये 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से पढ़ रही है। इज इट क्लियर? सॉरी, वेट कर रही है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज देयर Yes, sir. एनी डाउट बच्चे? No, sir. So this Yes, sir. was the session which was totally made. It is totally session which is there on future tense. So I hope you have understood future tense. Yes, sir. If there would be anything, kindly don't hesitate in asking me. Sir, एक